Hello, students. Today we'll start the second chapter of Vistas, and the name of the chapter is The Tiger King. It has been written by Kalki. It is not the real name of the writer, it is his pen name, and the actual name of the writer was Ramaswamy Krishnamurti. He was a famous Tamil writer who was born in 1899, and he was a famous writer of his time because he wrote many short stories, many novels, and he gave his contribution towards the freedom of India by his stories. He died in 1954. Here I would like to tell you something. What is Kalki? Kalki is known the last incarnation of Vishnu, our Lord. हमारे जो विष्णु देवता हैं उनके नाम पे ही उनका जो अवतार हुआ है कल्कि, उसके नाम पे इन्होंने अपना नाम रख रखा है कल्कि. So he died in 1954, and at that time his age was 55. And out of his more than 100 short stories, this story has been taken by CBSE in your syllabus. And why CBSE has taken this in your syllabus? Because it tells us many things about the atrocities, the cruelty of human beings towards wild animals, and especially at the time of British era. What happened at that time? The rulers, especially the Indian rulers, were under the thumb of British rule. They didn't care about their subject, means the people of their states. They just enjoyed their lives, and whatever they wanted to implement, whatever they wanted to force on them, they did it. So the tiger king, the king in this story also is also a very foolish king. He does not know what is the duty of a king, and he just does whatever he wants. And what did he do that the writer wanted to tell us here in this story? This is a story about the Maharaja of Pratibandhapuram. His name was Jung Bahadur. When he was born, his name was Jung Bahadur. Later, he was known as Tiger King. And why was he known as Tiger King? Because when he was born, after 10 days, an astrologer predicted that the child would be killed one day, means the child would die one day. So that 10-day-old child started laughing, and everyone was thumbstruck. How could a child of 10 days laugh like this? And not only laughing, he enunciated some words also, and it was in clear voice. It could be understandable, it could be understood easily. What did he say? Oh, astrologer, one who is born dies one day. Everyone knows that. There would be any kind of logic if you tell us what would be the manner of my death. Although a 10-day-old boy cannot speak, but स्टोरीज में कुछ भी हो सकता है. स्टोरीज जो राइटर होते हैं वो स्टोरीज में ऐसी चीज़ें इसलिए दिखाते हैं बिकॉज दे वांट टू टेल अस समथिंग दैट इज़ मीनिंगफुल. मीन्स वो हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं स्टोरी के थ्रू जिससे वो सोसाइटी में बदलाव ला सकें, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दें. सो हेयर स्टोरी बनानी थी, इसीलिए ये प्रेडिक्शन कराई गई. और टाइगर किंग ने जब पूछा कि भाई कैसे होगी डेथ, एट दैट टाइम द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द चाइल्ड वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. और उस वक्त बच्चे ने कहा
लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स को सावधान कर दो कि उनका दुश्मन आ गया है। मीन्स ही वांटेड टू से कि वो उनको मारेगा, टाइगर टाइगर उसको नहीं मारेगा, बट 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 वो टाइगर्स को मारेगा। आफ्टर दिस प्रिडिक्शन, टाइगर किंग बिल्कुल वैसे ही पला बढ़ा जैसे ब्रिटिश राज के दौरान राजाओं के बच्चे पलते बढ़ते थे। वो राजा जो ब्रिटिशर्स के आदेशों का पालन करते थे। एंड यू नो व्हाट डिड दे डू? दे वर implementing everything told by the British officers. They didn't care about their country, they didn't care about their people, they just cared about their selfishness. So these kings were flourishing at that time because they were all साइकोफेंट्स, चापलूस थे वो सभी। तो जैसे उस समय के ऐसे राजाओं के बच्चे पलते बढ़ते थे वैसे ही वो पला बढ़ा। एवरीथिंग ही गॉट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लिश एजुकेशन ही गॉट, इंग्लिश नैनी के द्वारा उसको पाला गया, इंग्लिश काउज का मिल्क उसने पिया, इंग्लिश मूवीज़ देखी, इंग्लिश स्टोरीज सुनी, एवरीथिंग वॉज इंग्लिश एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम, स्टेटस सिंबल था। एंड व्हेन ही रीच टू द एज ऑफ 20, he came to know about that prediction, and at that time he decided that he would take care of other matters of his state after killing tiger. And in this way he went to the forest and killed a dangerous tiger, and he called for the astrologer. एस्ट्रोलॉजर को बुलाया उसने, और एस्ट्रोलॉजर के सामने उस टाइगर को की बॉडी को डाल करके उसने पूछा, ये रहा आपका टाइगर, what do you say now? Astrologer said that king could kill 99 tigers like this, but the 100th tiger would kill the king. At that time, the king was the king decided that he would take care of all other matters after killing 100 tigers, and he prohibited tiger hunting in his state so that no one would be able to kill tigers. कहीं उसको 100 टाइगर्स ना मिले, इसलिए इसलिए उसने अपनी स्टेट में बाकी सभी के लिए टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। एंड व्हाट हैपेंड? He killed 70 tigers in his state, but then tigers population got extinct in his state. Now he didn't have tigers in his state to kill, but he had to kill 100 tigers. So what he did, he called his divan and asked him to search for a girl in a royal family, means किसी राजकुमारी को ढूंढो, and that princess should be in that state where there would be tigers. So बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि भाई जिस स्टेट में टाइगर्स हों बहुत सारी संख्या में, उस स्टेट की किसी राजकुमारी से मैं शादी करना चाहता हूँ। सो मेन motive of his being married was to kill tigers in his in-laws state, and in this way he got married, and whenever he went to his in-laws, जब कभी भी वो अपनी ससुराल जाता दो चार को गिरा के आ जाता। In this way he killed 99 tigers, and tigers population got extinct in his in-laws state also. Now one more tiger was needed, but no tiger could be found, and the tiger king got angry. He got so much angry that Diwan and his officers were in fear that they could lose job.
One day, a news came that in a hilly area of his state, goats started disappearing. बकरियां गायब होनी स्टार्ट होगी, तो they thought that there would be a tiger in that area. That's why being killed by goats were being goats were disappearing. So he went to that village and camped there. He searched for the tiger, means he wanted to kill the 100 tiger. उसका सारा काम रुका हुआ था, उसने सब कुछ रोक रखा था, बिकॉज ही हैड टू किल 100 टाइगर्स. एंड एट दैट टाइम ही डिक्लेयर्ड दैट उस स्टेट का कर माफ़ कर दिया जाए, टैक्स माफ़ कर दिया जाए, जो क्रॉप्स पर वो टैक्स लगाते हैं. बट काफ़ी सर्च करने के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद जब वहाँ पर टाइगर नहीं मिला, तो टाइगर किंग वॉज सो मच एंग्री दैट ही डिक्लेयर्ड कि उस गांव के लोगों से 3 गुना टैक्स लिया जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन सी द फुलिशनेस ऑफ द किंग, कि वो अपने सारे काम छोड़ करके टाइगर्स को मारने में लगा हुआ है. इससे अच्छा तो वो ये करता कि भाई टाइगर से अपने आप को बचाता, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्लस में एक वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज को दो स्टेट्स में एक्सटिंक्ट कर दिया, विलुप्त कर दिया. एंड नाउ ही वॉज सो मच एंग्री दैट ही डिक्लेयर्ड कि उस गांव के लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर साइंस ऑफ फुलिशनेस. One more thing I wanted to tell you and I forgot in between. One day, an English officer came to his state and expressed his wish that he would be allowed to kill a tiger. कि भाई उसको एक टाइगर मारने की अनुमति दे दी जाए. टाइगर किंग न्यू दैट ही हैड टू किल 100, और अगर एक भी कम हो गया तो ही वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज डिज़ायर. तो उसने मना कर दिया कि राज्य के अंदर कोई भी टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकता है सिवाय राजा के. उसने डिक्लेयर कर रखा कि कोई इंसान अगर पत्थर भी फेंक देगा टाइगर की तरफ, सो इट इज़ वेरी फनी. कोई क्यों फेंकेगा पत्थर, वही कोई डॉग थोड़ी ना है उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारेगा कोई. बट ही डिक्लेयर्ड दैट अगर कोई पत्थर भी फेंक के मारेगा तो उस इंसान की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी राजा के द्वारा. सो इन दिस वे, जब उसने देखा कि भाई एक ब्रिटिश ऑफिसर एक टाइगर की हंटिंग करना चाहता है और अगर उसने उसको अलो कर दिया तो और भी आ जाएंगे, भाई हमें भी अलो करो. सो उसने बड़े ही ह्यूमरस अंदाज में कहा कि आप सुअर की हंटिंग कर सकते हो, आप मच्छर की हंटिंग कर सकते हो, माउस की हंटिंग कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी फनी. कुल मिला करके राइटर ने बड़ा फनीली इस स्टोरी को लिखा है, बड़े सेटायर्स भरे हुए हैं, एंड वी यू वुड लाइक टू रीड दिस स्टोरी. तो जब उसने देखा कि ही हैड मेड एन इंग्लिश ऑफिसर एंग्री, सो ही सेंट मैनी रिंग्स टू हिज वाइफ. ही थॉट दैट शी वुड सिलेक्ट 1 or 2 डायमंड रिंग्स उसने भेज दी, ताकि उस ऑफिसर की जो वाइफ है, वो इंग्लिश ऑफिसर की जो वाइफ है, वो 1-2 रिंग लेकर के खुश हो जाए और जिलाने जंग जंग बहादुर के राज्य पर कोई खतरा ना मंडराए. लेकिन वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की रानी थी वो बड़ी लालची थी, 30 रिंग्स भेज रखी थी, 30 की 30 रख लेती है और वो बदले में रिप्लाई भेजती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपेंसिव गिफ्ट. बट राजा जंग जंग बहादुर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज स्टेट फ्रॉम बीइंग अ प्रे टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स. मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर्स का शिकार होने से उसने अपने राज्य को बचा लिया था. सो वी हैड रीच्ड कि 99 टाइगर्स उसने मार दिए थे, और एक गांव के अंदर खबर आई थी कि एक टाइगर मिल गया है. बट आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे कुड नॉट फाइंड द टाइगर एंड ही पनिश्ड द विलेजर्स. एंड नाउ दीवान वॉज इन टेंशन. दीवान को लग रहा था कि इस तरह से राजा गुस्से में आकर के सभी को नुकसान पहुंचाने वाला है, एंड दीवान वॉज ऑल्सो गोइंग टू लूज हिज जॉब. सो उसने क्या किया, उसने एक ऐसे टाइगर की अरेंजमेंट की जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था. वो किसी सर्कस से लाया गया टाइगर था, और वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो उससे बच्चे भी ना डरें. तो उस टाइगर को ला करके वो जंगल में छोड़ देता है, और राजा तक किसी तरह से खबर पहुंचा दी जाती है. राजा उसको मारने जाता है, बट द किंग मिस्ड इट्स मार्क हिज मार्क. मीन्स बुलेट जो थी वो लगी नहीं टाइगर को. टाइगर इतना बूढ़ा था कि उस गोली की आवाज़ से ही सदमा खा करके नीचे गिर गया.
और राजा ने सोचा वो मर गया और आदेश दे करके चला गया कि इसको पूरे प्रोसेशन के साथ लेके आओ। राजा चला गया, बट द मैन ऑफ द टाइगर, टाइगर किंग न्यू इट दैट द टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड, and they knew if they told this truth to the tiger they would lose their job, so they killed the tiger. There is an irony: 100th tiger was not killed by the tiger king, it was killed by the men of the tiger, hunters of the shooters of the tiger king. And they came to know कि 100 टाइगर राजा को मारेगा और वो मरा नहीं अभी तक, मीन्स राजा ने 99 ही मारे हैं, and he was thinking that he had killed 100 tiger. After that, tiger king पेड अटेंशन टू एवरीथिंग। अब तक उसका बच्चा जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था और उसका बर्थडे आने वाला था। तो टाइगर किंग ने सोचा कि अपने बेटे को कुछ गिफ्ट दिया जाए, और वो अपने ही स्टेट की मार्केट में जाता है कुछ खोजने के लिए, और उसे काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही फाउंड आ टॉय टाइगर एंड इट ही लाइक्ड इट। जिस इंसान ने इतना समय टाइगर्स की हंटिंग में बिता दिया और दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ टाइगर ही था, तो उसको खिलौने में भी टाइगर ही पसंद आएगा। ही लाइक्ड इट एंड ही टुक इट, बट दैट टाइगर टॉय हैड बीन carved, it had been made by an unskilled carpenter, और वो इस तरह से बनाया था, वो उसमें कुछ उबड़ खाबड़ स्लीवर्स निकले हुए थे। एंड व्हेन टाइगर किंग वाज प्लेइंग विद हिज सन यूजिंग दैट टॉय टाइगर, वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में चुभ गई, और क्या हुआ, 2-3 दिन के अंदर ही इन्फेक्शन फैल गया हाथ में, और काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई, इतनी हो गई कि हाथ कटने का भी डर हो गया। तो कलकत्ता से 3 सर्जन बुलाए गए, उन्होंने ऑपरेशन किया, एंड दे वर इन्वॉल्व सो मच इन द टेक्निकलिटीज ऑफ द ऑपरेशन। व्हेन दे गॉट सक्सेस इन द ऑपरेशन दे डिडंट सी दैट द टाइगर किंग हैड डाइड। वो बाहर आकर के बोले कि भाई ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज डेड। सो देयर इज एन आयरनी। what is the writer trying to convey here, कि भाई टाइगर किंग इतना खतरनाक था स्टेट के लिए, उसने इतने सारे जानवरों को मार दिया, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दिया, दैट्स वाई ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द टाइगर किंग इज डेड। हेयर द राइटर इज ट्राइंग टू टेल द डॉक्टर्स वर ऑल्सो हैप्पी एट दैट टाइम, बट one more meaning can be extracted here. They were involved so much in the technicalities of the operation that they didn't care about that the Tiger King had died. So what is the message that the writer is trying to convey here? Animals were treated badly at the time of British era, and before that also kings killed them just for their wish, and the tiger king killed all the tigers of his state and in his lost state. And we know that then there is an ecological balance in the world. If all the flesh eating animals are killed, then the grass eating animals would be increased, and it would be bad for the ecological system, it would be bad for human beings, it would be bad for grass and trees, and in this way there would be an imbalance in the world. So everything is here balanced. So nature is being spoiled by human beings, and it is being spoiled by the whims and arrogance of the people. That king could avoid facing tigers, but he, instead of doing this, started killing tigers, and he did it by putting at stake the state of his, means the people of his state, that he didn't care about their well being, he didn't care anything about the matters of his state. So this is the thing that we are going to read in this chapter, and I think
After listening to the summary, you would be able to understand what is the story that we are going to read. And we'll start reading the chapter tomorrow. Till then, students, take care. Bye.